بلند تر صلوات پڑھے ورد بقائے لا الہ کی پاک و طاہر طیب و طاہر دلیس پر نماز ولاد کا سجدہ ادا کریں گے علامہ علی عمران باولپور. چلو بر محمد والے محمد صلوات پڑھیں. بار دیگر بلندتر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام الرسول المصدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد الصاحب تاج والمراج والبراق والعلم جسمه مقدس منور معطر مرفوع في اللوح والقلم احمد المجتبى سیدنا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد خاتم لما سبق الفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جائلک للناس اماما صلوات. نعرہ تکبیر. بات سنیں، اللہ اکبر کا معنی پوری کائنات میں یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ایسا کریم ہے. لا الہ پڑھتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو بھی رزق دیتا ہے. اور اس اللہ کی کریمی یہ ہے کہ وہ احسان کرتا ہے اور جتلاتا نہیں ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا جو توحید کا قائل نہ ہو. سارے بواز بلند نام اٹھائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، پھر بھی نعرہ رسالات، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری. صلوات پڑھیں خاندان زہرا پر. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اس کے ترجمے سے پہلے میں 4 مصرے ربائی کے پڑھنا چاہتا ہوں. اس ربائی سے مجھے یہ معلوم ہوگا کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے. منکر ہو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، منکر ہو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان بھی اتنا نیاب نہیں ہے. کچھ بندے چپ بیٹھے ہیں مگر یہ بات ہے کہ آپ آگے ہیں ذکر میں. عبادت تو آپ کی ہو رہی ہے، نماز وہ بھی ہوتی ہے جو گھر میں پڑھی جاتی ہے، نماز وہ بھی ہوتی ہے جو مسجد میں باجماعت پڑھی جاتی ہے. میرا دل ہے کہ آپ گھر والی نہیں باجماعت پڑھیں. فرق یہی ہے، آپ چپ کر کے سنیں گے تو گھر والی نماز ہوگی، میرے ساتھ بولیں گے تو باجماعت نماز ہوگی. اور کچھ بندے سوچتے ہیں کہ ذاکر مولوی کے ساتھ ہاتھ کھڑا کریں گے اس کی بلے بلے ہو جائے گی. نہیں بھائی، اپنا فائدہ ہے. 12واں لال ولایت فرماتا ہے جو بندہ مجلس شبیر میں بیٹھ کر ذاکر مولوی واعظ مفتی کے سامنے ہاتھ بلند کرتا ہے، اللہ ملائکہ کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ چلے جو اس محفل میں، اس مجلس میں جو ہاتھ بلند ہے اس کی لکیریں پڑھو. جو بے اولاد ہے اولاد لکھو، جو بے رزق ہے رزق لکھو، جو بیمار ہے اس کی شفا لکھو.
कुछ बंदे अभी तक भी चुप रह गए हैं। मैं दावत देना चाहता हूँ, इस जिक्र में हर जबान नहीं बोलती, क्योंकि जबान कोई चौक के लिए मुकर्रर होती है, कोई घर की जीनत होती है, कोई बाजार की जीनत होती है। मैं कायनात कुर्बान करूँ अजहर हसन जैदी साहब के जुमले पे। वो फरमाते थे आबे कौसर से धुली हुई वो जबानें होती हैं जो अली के जिक्र में बोलती है। वो जबानें आबे कौसर से धुली होती हैं। मैंने अर्ज की मुनकर हो गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, माथे का निशान भी इतना नयाब नहीं है। मौलवी उलमाए कराम तू सुनते रहते हो कि बरोज़े माशर टोले होंगे लोगों के, उनके नाम अमाल उनके पास होंगे और रास्ते में फरिश्ते आएंगे, कहेंगे रुको यहाँ पे चेक पोस्ट है, नाम अमाल अपने चेक कराओ। उन टोलों में से कुछ ऐसे टोले होंगे जिनके नाम अमाल फरिश्ते चेक करके उनके मुंह पे मारेंगे और कहेंगे दफा हो जाओ, तुम्हारे नाम अमाल में से विलायत अली का टोकन 60 है, विलायत अली का टोकन 60 है। वो इनकी तरफ देख के कहेंगे हमें देखो, हमने बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ी, ये हमारे निशान है। फरिश्ते इनकी तरफ देख के कहेंगे मुनकर हो गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, माथे का निशान भी इतना नयाब नहीं है जिसे तुम दिखाते हो जबीं तान के अपनी, ये बुग़्ज़ अली का धब्बा है, मेहराब नहीं है। ये बुग़्ज़ अली का धब्बा है, मेहराब नहीं है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह अपने खलील नबी से कह रहा है कि मैं इम्तिहान लूंगा, अगर उस इम्तिहान में आप पास हो गए तो मैं आपको इंसानों का इमाम बना दूंगा, इंसानों का इमाम बना दूंगा। नबी वो पहले है, रसूल पहले है, खलील पहले है। इतना ओहदा इमामत का बुलंद है। अल्लाह कह रहा है ये इम्तिहान में पास हो गए तो मैं तुम्हें इमाम बना दूंगा। इब्राहिम खल क्यों है? अल्लाह ने जमीन खल की, जमीन में जलजला था, जमीन में सुकून न था, जमीन कपकपी से थरा थरा कांपने लगी। जबरील से अल्लाह ने कहा जाओ जमीन पर, जमीन का हालात देखो। जबरील ने अर्ज की मेरे अल्लाह ये जमीन कांप रही है, इसमें जलजला है, इस पे ना तो सब्जा हो सकता है, ना इस पे महल्लात खड़े हो सकते हैं, ना इस पे मस्जिद बन सकती है, ये कांप रही है, क्योंकि हिलती हुई चीज पे कोई चीज रखी नहीं जाती। खालिक ने फरमाया इसका इलाज जानता हूं। पता नहीं कितने बंदे लोग मुझे जाग के सुन रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा बोले ना बोले, क्योंकि जो बंदा यहाँ बोलेगा उसके लिए 12वां कब्र में बोलेगा। यहाँ पे चुप रहे तो कौन बोलेगा? क्योंकि आले मोहम्मद के सिवा कोई हमारा वारिस नहीं है, क्योंकि अली बादशाह उस खालिक का वो नुमाइंदा है। कोई माने अली तब भी अली है, कोई ना माने अली तब भी अली है। तेरे मानने से अली बढ़ता नहीं है, तेरे ना मानने से अली घटता नहीं है। जिसे सारी दुनिया अली को छोड़ दे अली का जाता नहीं, जिसको अली छोड़ दे उसका बचता नहीं। सारे हलाली हाथ बुलंद करके हैदरी। जमीन कांप रही है मेरे अल्लाह, इस पे कुछ खड़ा नहीं हो सकता। खालिक ने फरमाया जो जमीन कांप रही है इसके सेंटर में लिखो या अली मदद, या अली मदद। या अली मदद लिखने की देर थी, जमीन को सुकून आ गया, मगर जबरील का चेहरा उतर गया। खालिक ने फरमाया तुझे क्या हुआ है? देख के कहता है मेरा अल्लाह मेरी अकीदत खत्म हो गई, जमीन पे या अली मदद लिखवाया है और यहाँ पे आदम के नालायक बेटे चलेंगे, मेरी अकीदत तो खत्म हो गई। खालिक ने फरमाया इसका इलाज भी जानता हूँ, जहाँ तुमने लिखाया है या अली मदद, इब्राहिम नबी से बोलो यहाँ पे काबा बनाए। अगर सारी औलाद आदम न झुकाऊं तो अल्लाह नहीं, अगर सारी औलाद आदम न झुकाऊं तो मैं अल्लाह नहीं। अल्लाह ने इब्राहिम से कहा मक्के की सरजमीन पे मेरा घर बना। जो बंदे जाग रहे हो मुझे सुन रहे हो उनसे पूछता हूं, इब्राहिम मिस्त्री था? नहीं था मिस्त्री। अल्लाह ने फरमाया मेरा घर बड़ा। अब उन बंदू के लिए जुमला कहने लगा हूं। इब्राहिम देख के कहता है मेरा अल्लाह घर वो बनवाता है जो उसने रहना हो, जो उसने रहना हो। तूने रहना है? खालिक ने फरमाया नहीं। फिर घर क्यों बनवाता है?
खालिक ने फरमाया कोई किसी गरीब के पास भी जाता है, वो भी उसे छोटी सी भी हो बैठक देता है, घर देता है। तू क्या चाहता है? मुझे अल्लाह का कोई मेहमान हो, बगैर घर के बैठा रहे, बगैर घर के बैठा रहे। खालिक मैं मिस्त्री तो बन जाता हूं, घर बनाता हूं, मगर अकेले मिस्त्री से घर नहीं बनता, मजदूर की जरूरत पड़ती है। वो ईंट देता है, वो सीमेंट देता है। क्या मैं इस बस्ती से कोई बंदा ले आऊं? खालिक ने फरमाया जो बस्ती से ले आएगा वो गुनहगार होगा, उसमें ऐब होंगे। जिनके लिए घर है वो बेऐब हैं, जो उनके लिए घर है वो बेऐब है। खालिक किसको मिलाऊं? खालिक ने फरमाया इस्माइल को साथ मिला। इब्राहिम और इस्माइल दोनों ने मिलकर मक्के की सरजमीन पे घर बनाया। जब घर की दीवारें ऊंची हुई, बाप बेटे के कद से बुलंद हुई, तो कहा खालिक हम बस्ती से ड्रम गादर पकड़ के ले आए, क्योंकि हमसे ये दीवारें बुलंद हैं। खालिक ने फरमाया जमीन की चीज नहीं चाहिए। तो खालिक फिर कैसे होगा? खालिक ने फरमाया मैं जन्नत से पत्थर भेजता हूं, उस पे रखो कदम और बनाओ अली के लिए घर। खालिक इब्राहिम ने अर्ज की खालिक हमारा इनाम क्या होगा? खालिक ने फरमाया तुम उस पत्थर पे कदम रख के अली के लिए घर बनाओ, वो पत्थर कयामत तक के लिए हर हाजी से हाजरे अस्वद बना के चुमवाऊंगा, हर हाजी से हाजरे अस्वद बनवा के चुमवाऊंगा। इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर घर बनाया। अब मैं इस बात पे जोर नहीं लगाऊंगा। लोग हमसे पूछते हैं शिया मजहब क्या है? एक लफ्ज में बताता हूं कि इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह मिल के जिसके लिए घर बनाए उसको शियों का पहला मुर्शिद अली कहते हैं। यह है मजहब शिया। और इम्तिहान कौन था? कौन सा था जिसके लिए अल्लाह ने कहा इमामत दूंगा? अल्लाह ने खुद सवाल किया था कौन है जो मुझसे इश्क करे? कौन है जो मुझसे इश्क करे? मोहब्बत नहीं भाई, मोहब्बत में हमेशा लिया जाता है, इश्क में हमेशा दिया जाता है। खालिक ने फरमाया कौन जो मुझसे इश्क करेगा? जिसने भी इश्क का दावा किया अल्लाह ने जमीन में भेज दिया। पहला आदम को अल्लाह ने भेजा, वो इश्क के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था कि आदम के एक बेटे ने दूसरे को कत्ल कर दिया। जो बंदे तरीक सुनना पसंद करते हो, एक को कत्ल कर दिया, क्योंकि इश्क के इम्तिहान में 3 चीजें होती हैं, जान, माल, औलाद। औलाद में नुक्स आ गया, अल्लाह ने वापस बुला लिया। अल्लाह ने दूसरा नबी भेजा नूह, वो इश्क के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, या उसका बेटा बागी हो गया, अल्लाह ने पीछे बुला लिया। तीसरा अल्लाह ने भेजा इब्राहिम को। पहले अल्लाह ने माल का इम्तिहान लिया, उस पर्चे में पास हुआ, सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। फिर अल्लाह ने जहन का इम्तिहान लिया, क्योंकि वो अल्लामा इकबाल कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क। ये बंदे जाग रहे हो भाई, उनके लिए बात है मेरी। बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क। मेरा मकसद शेर पढ़ना नहीं है, ये भी पर्चा हल हो गया। तीसरा इश्क का इम्तिहान का पर्चा था औलाद वाला। हजरत इब्राहिम ने छुरी उठाई, रस्सी उठाई, घर से निकला, इस्माइल को पकड़ा, रास्ते में 3 नाके लगाए शैतान ने 3 नाके लगाए। मुझे समझ आ गई कि छुरी इब्राहिम की है, गला इस्माइल का है, चलना इस्माइल पे है। शैतान को तकलीफ क्यों होती है? न छुरी इब्लीस की, न खून इब्लीस का निकलना है। छुरी इब्राहिम की, हाथ भी इब्राहिम के, इसकल्ला इस्माइल का, खून भी इस्माइल का। इब्लीस ने आके रोका इस्माइल को कि तुम्हारे बाप को क्या हो गया है, वो तुम्हें कत्ल करने लेके जा रहा है। इस्माइल ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शैतान दफे हो जा। शैतान दौड़ता भी है, देख के कहता तुझे कैसे पता चला मैं इब्लीस हूं? उसने कहा लानती, शैतानों को सिंग नहीं होते, जो भी नबी के दिमाग पे हमला करे वही तो शैतान होता है, वही तो शैतान होता है। आगे फिर इब्राहिम के पास आया, उसने कहा तूने ख्वाब देखा है? ख्वाब मैं भी देखता हूं, मैं पूरा नहीं करता,
तुम क्यों करने जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। उसने कहा तू कैसे जानता है मैं शैतान हूं? उसने कहा जो नबी की बराबरी करे वही तो शैतान होता है। अब इब्लीस ने सोचा यहां पे बस नहीं चलता, जाके इनकी बीवी को वरगलाता हूं, क्योंकि वो नबी की बीवियों को पहले वरगला चुका था, तजर्बा था। नूह की बीवी, लूत की बीवी, जो बंदे चुप कर गए, वरगला चुका था, उसका तजर्बा था। नबी की बीवी जद में आ जाती है। मैंने कहा इब्लीस कुत्ते तेरा बस हाजरा पे नहीं चलेगा। उसने कहा अली इमरान तू दावे से कैसे कह सकता है? मैंने कहा वो हाजरा फकत नबी की बीवी नहीं, एक मासूम की मां भी है, एक मासूम की मां भी है। ये आ गया यहां पे पर्दे के बाहर, तुम्हारा बेटा और बाप शोवर कहां गया? उसने कहा दावत पे गए। देख के कहता है वाह, दावत पे कोई छुरी ले जाता है। उसने कहा कि घर से निकल, घर से निकल, बेटे को बचा ले, वो कत्ल कर देगा। नबी की बीवी देख के कहती है वो मालिक है, वो मालिक है, वो उसका दिल चाहे तो मुझे भी कत्ल कर दे। तो उसने कहा जल्दी कर, घर से निकल और बेटे को बचा। बीबी ने अंदर खड़े होकर कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। पता नहीं कौन बुजुर्ग मुझे दुआ देंगे, जवान भाई से दाद लूंगा। उसने कहा बीबी आप कैसे जानती हैं मैं इब्लीस हूं? बीबी ने कहा लानती, जो भी नबी की बीवी को घर के निकलने की दावत दे वही तो शैतान होता है। सारे हलाली बस छोड़ बस। हाँ, मुझे बानी कहा गया है कि 5 बजे आना है अली इमरान ने, तो आपने छोड़ देना है, इसके लिए उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं। हाँ जी, एक जुमला मैं फजल का देने लगा। मीना पे आ गए, बात जिसके जहन में है कि अल्लाह से इश्क कौन करेगा, मोहब्बत नहीं भाई, हम मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। 2 रकात नमाज खत्म होती है, दुआ मांगने शुरू कर देते हैं, अल्लाह ये दे ये दे ये दे ये दे। ये मोहब्बत है। इश्क में होता है ये ले ये ले ये ले ये ले। मीना के मकाम पे आए, इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी बांधी, बेटे के हाथ और पांव बांधे, छुरी चलाने लगा। और मैं इस मिंबर पे खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी से गुफ्तगू करना चाहता हूं कि जो दुम्बा इस्माइल की जगह पे जिबा हुआ है वो रोया नहीं, वो रोया नहीं है। मैंने पूछा दुम्बे से, भाई छुरी चलते हुए तो रोते हैं जिसको लिटाया जाए, तू क्यों नहीं रोया? उसने कहा अली इमरान अगर नबी की जान बचाने हो ना तो फिर रोया नहीं जाते, रो के मुखबरी नहीं करते। चुप करके मैं ज़िबा हो गया हूं, रो के मुखबरी, नबी की जान बचानी थी। इब्राहिम ने पट्टी बांध के छुरी चलाई, छुरी चल गई, फुवारा निकला, हाथ पे खून आया, पता चला बेटा ज़िबा हो गया है। आंखों से पट्टी खोली, इस्माइल सामने खड़ा है, दुम्बा ज़िबा हो गया है। अब मैं 73 फिरके के मौलवियों से पूछता हूं, ज़िबा दुम्बा हुआ है, तुम इस्माइल ज़बीउल्लाह क्यों कहते हो? दुम्बा ज़िबा हुआ है, तुम इस्माइल ज़बीउल्लाह क्यों कहते हो? ज़िबा तो दुम्बा हुआ है, तुम इस्माइल ज़बीउल्लाह। जब तक सब तवज्जो नहीं करेंगे यही जुमला दोहराऊंगा, जो ज़िबा तो दुम्बा हुआ है, तुम इस्माइल ज़बीउल्लाह क्यों कहते हो? हर मौलवी यही बोलेगा कि वो 10 सेकंड पे 1 मिनट अल्लाह की रजा की खातिर वो छुरी के नीचे पड़ा रहा। मैंने कहा तुम्हारी शर्म खत्म हो गई है, डूब के मर जा। जो 1 मिनट के लिए छुरी के नीचे पड़ा रहे उसको ज़बीउल्लाह मान लेते हो, जो पूरी रात तलवारों के साए में सोया रहे उसको वलीउल्लाह नहीं मानते। पट्टी खोली, इस्माइल खड़ा है, अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल नहीं है। खालिक ने फरमाया तू खलील हो सकता है मगर आशिक नहीं। क्यों? खालिक ने फरमाया आंखों पे पट्टी क्यों बांधी?
कहा मेरा बेटा था। खालिक ने फरमाया मेरी मोहब्बत में बेटे की मोहब्बत कहां से आ गई? मेरी मोहब्बत में बेटे की मोहब्बत कहां से आ गई? तो इब्राहिम ने कहा खालिक कोई ऐसा होगा तेरा आशिक, यहां से मेरा मसहब का रब्त है, कोई आशिक होगा जिसके आंखों पे पट्टी ना हो, जिसके हाथ और पांव बंधे हुए ना हो। खालिक ने फरमाया हाँ 21 हिजरी 10 मुहर्रम जुम्मतुल मुबारक का दिन। बिस्मिल्लाह। करबला में आ जाना अगर मेरा आशिक देखना है। 71 लाशें उठा के गरीब ज़हरा आखिर में कहते हैं तू भी वाहिद मैं भी वाहिद, तेरी मिसाल भी कोई नहीं। क्योंकि 71 लाशों पे हुसैन ने यही कहा है मेरे अल्लाह अकबर ले ले, असगर ले ले, अब्बास ले ले, मुस्लिम बिन औसचा ले ले, हबीब इब्न मज़ाहिर ले ले, हुर ले ले, अली बिन हुर ले ले। इमाम हुसैन देते रहे, ये इश्क है, देते रहे। जिस बात के लिए मैंने ये मौजू शुरू किया है, जिस कुर्बानी की बुनियाद रखी मिना पे इब्राहिम और इस्माइल ने, उसकी इंतहा की करबला में हुसैन और अकबर ने। जब हुसैन का अकबर घोड़े से गिरे तो बुजुर्ग जाकिर गुजरे हैं, मेरे भाई मेरी तायीद करेंगे, मौलाना गुलाम हैदर कल्लू, वो कहते थे जहां पे शबीर बैठे थे ना वहां पे जमीन पे हाथ मारा और कहते हैं मेरी आंखों की नजर खत्म हो गई है, कहां उतरे वो घोड़े से, मुझे जवाब दो, मुझे रास्ता नजर नहीं आता। ये भी बुजुर्ग जाकिर पढ़ते हैं, उन्हीं का जुमला पढ़ने लगा हूं। हुसैन मक्तल में आए, देखा एक फकीर है, वो रो रहा है मुंह पे मातम करके, लेकिन इस पे उलमा किसी ने बताया है कि वो फकीर न था, वो खिजर नबी था, जिसकी अकबर की मौत ने ऐसी हालत बनाई हुई थी। भाई इमाम हुसैन के गम में शर्माया नहीं करें, क्योंकि एक ऐसा पुरसा होता है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। सैयद साजिदीन जिनकी 2-4 दिन पहले शहादत गुजरी है, उनके दौर में एक बंदा मुंह पे रुमाल दे के रो रहा था, तो इमाम ने रुमाल हटाया, तुम मेरे बाबा को नहीं रो रहे? उन्होंने कहा मौला मैं तो रो रहा हूं। मौला ने कहा ऐसे रो रहे हो? देखे कहता मौला कैसे रो? मौला ने फरमाया ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है। अजर कमल अल्लाह, जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है। भाई तुम्हारे रोने का पता तुम्हें कब्र में लगेगा, जब तुझे रिश्तेदार छोड़ के आ जाएंगे ना तो अल्लाह के फरिश्ते आएंगे सवाल करने, तुम चुप होगे और तेरे सर से एक लाश उठेगी जिसका कफन नहीं होगा। गरीब रो के कहेगा आराम से पूछो ये मेरी बहन की लुटी चादर को रोता था। अजर कमल अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे बहन बतूल की गवाही में शुमार करे, अल्लाह तेरे बेटियों के बहनों के पर्दे सलामत रखे, अल्लाह तुझे सिवाय गम में शबीर के कोई गम न दिखाए। हुसैन ने पूछा तेरा कोई जवान मर गया है? देख के कहता है मेरा न था, जिसका भी था वो हसीन बड़ा था। हुसैन ने कहा मुझे कोई निशानी दे, एक जवान को मैं तलाश कर रहा हूं। ये देख के कहता है समंद घोड़े का सवार था। हुसैन ने कहा मैंने रकाबा पकड़ के सवार किया है, किसी की तो जवान औलाद होगी। उसने कहा सुर्ख पग बांधी हुई थी। हुसैन ने कहा मैंने तो सफेद बनाई थी। देख के कहता है अल्लाह जाने तीसरी निशानी, जिसकी छोटियां छोटियां बेटियां हैं, रोए ना रोए तुम्हारी मर्जी है, मगर देखना मेरी तरफ। ये देख के कहता है आखिरी निशानी ये है, जब जंग से फारिग होता था ये सामने वाले टीले पे चढ़ जाता था और मदीने मुंह करके कहता था सुगरा बहन, अजर कमल अल्लाह, सुगरा बहन अकबर को भूल जाना, अकबर पे मौत आ गई है, मुझे मिंबर की कसम है। हुसैन कहते हैं ये जवान मेरा था,
ये फकीर कहता है मैं नहीं मानता, क्योंकि तू ज़ईफ है, अपनी जिंदगी बचाई है, जवान बेटे को मौत की तरफ भेजा। मुझे मिंबर की कसम है, हुसैन देख के कहते मेरे नाने का दीन नहीं बचता था। देख के कहते तुम दीन की धमकी देते हो, तुम कोई बतूल के बेटे हुसैन हो। अजर कमल अल्लाह हुसैन ने कहा आओ मैं तुम्हें गवाही लेकर देता हूं। जब चले तो 11 कदम दूर थे, एक ईरानी शेर है, वो लिखता है साहब मेरी तरफ देखे, रोए ना रोए आपकी मर्जी है, आपकी है भी है, बैठना भी अल्लाह इबादत में कबूल फरमाए। एक ईरानी शेर है, वो कहता है पिदर दर लाश है पिसर, जानू बजानू रसीद। वो देख के कहते हैं हुसैन अकबर की लाश पे ऐसे आए जैसे 6 महीने का बच्चा चलता।